Very good morning, students. In our last video, we have discussed about the expenditures and its types, and we have also seen on what basis we divide those expenditures. Okay. So now we'll continue that topic ahead of it. Okay, how? Okay, I have told in the earlier video we have discussed that expenses and expenditure are not same. And upon more discussion, we have seen that expenses is nothing but the revenue expenditure only, because expenses are smaller amount, revenue expenditure also smaller amount. So there is a 100% similarity between expense and revenue expenditure. Okay. So what does it mean? Expenses or expenditure, unless categorized, expenditure is a larger payment, expense is a smaller payment. And when you categorize the expenditure, then there comes revenue expenditure out of those three expenditures. We have discussed three types of expenditures now: revenue, deferred revenue, capital. So revenue expenditure is generally the expenses what you talk about in your daily life. So now we will continue with revenue expenditure. What revenue expenditure plays an important role, or how revenue expenditure plays an important role in your daily life, in your daily business life, or in any kind of scale of business enterprise. Discuss about revenue expenditure. Revenue expenditure is usually of two types, that is direct expenses and indirect expenses. What are those two types? Direct expenses and indirect expenses. Now the question comes about what is direct expenses, what is indirect expenses. Okay, direct expenses are those expenses that are made to bring the goods into sellable condition. क्या बोला मैंने? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चा है जो कि चीजों को बेचने की स्थिति में लाने के लिए खर्च किया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट आर मेड इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि उत्पादन नामक कार्यों के लिए खर्चे किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा. एंड इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस दैट आर मेड इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मेड इन लाइन ऑफ प्रोडक्शन. So what are the production expenses you find in a business that is production oriented or manufacturing concern? Okay. So manufacturing organizations are having lot of production expenses, out of which they are wages paid to workers. Most important is purchases, because you purchase raw material, then only you can make it finished product. Okay, so purchases of raw material is the first direct expenses. Then wages, then carriages. Carriage inward means carriages made on purchases. Then coal, fuel, lighting, heating, etc. These are the direct expenses. Means जो कि मैंने बोला कि वो एक वैसे खर्चे जो कि उत्पादन के लिए किए जाते हैं, those expenses which are made in the line of production or made to bring the goods into sellable condition, that are called as direct expenses. ठीक है, तो अब indirect expenses क्या होगा? वो खर्चा जो कि इसके अलावा होता है. वेरी सिंपल सी बात है, any expenses that are not direct expenses are called as indirect expenses. है कि नहीं? जो खर्चा अब direct expenses नहीं है वो indirect expenses ही होगा ना. तो indirect expenses क्या है? Those expenses which are not made in the line of production, मतलब जो कि ऑफिस वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किए जाते हैं, उनको बोलते हैं indirect expenses. Again I repeat, indirect expenses refers to those expenses that are not made in the line of production but made for office purpose or administrative purpose. So indirect expenses are made for administrative purposes. अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस पर्पसेस क्या होता है? सोचो कि जो खर्चे प्रोडक्शन में यूज नहीं होते, जो खर्चे प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं होते, वो क्या क्या खर्चे होते होंगे? बहुत सारे खर्चे मिलेंगे आपको, लाइक सैलरी, देखो यहां पर मैंने लिखा था वेजेस। अब वेजेस किसको दिया जाता है?
वर्कर्स को डेली बेसिस पे। वर्कर्स कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सैलरी। सैलरी किसको जाता है? एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में? नो, दे आर वर्क इन ऑफिस। नो, इसलिए मैंने बोला ऑफिस रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एक्सपेंसेस। समझ में आया? प्रोडक्शन रिलेटेड, नॉट प्रोडक्शन रिलेटेड। ठीक है, ये क्या है? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो सैलरी होगी, फिर क्या होता है? रेंट। रेंट से याद आया, रेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे? अगर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो तो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर आप ऑफिस का रेंट दे रहे हो, रेंट ऑफ ऑफिस, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पे देखो मैंने और एक चीज लिखा है, कैरेजेस इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो कि परचेज के ऊपर होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो, लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, जो भी हो। ठीक है, जो खर्चे परचेज के ऊपर होते हैं या परचेज से पहले होते हैं उनको बोलता है कैरेजेस इनवर्ड। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड इज द एक्सपेंसेस मेड ऑन परचेजेस। तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। उसको क्या बोलते हैं हम? कैरेजेस आउटवर्ड। क्या बोलते हैं हम उसको? कैरेजेस आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड परचेज के लिए खर्चा हो गया, कैरेज आउटवर्ड परचेज के बाद या बिफोर सेल्स जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं हम कैरेज आउटवर्ड। अब जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। जो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो परचेज का खर्चा प्रोडक्शन से पहले या प्रोडक्शन के टाइम पे होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, जबकि प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके बाद जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डेफिनेटली सेलिंग तो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद ही होगी ना, तो इसलिए सेलिंग एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अबाउट एज कैरेज आउटवर्ड। ऐसे बहुत सारे खर्चे और भी हैं, कुछ लॉसेस भी इसमें आ सकते हैं, लाइक योर बैड डेट। ठीक है, फिर आपका डेप्रिसिएशन, फिर बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा। तो ये सारे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वेरी सिंपल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा है, तो छोटा खर्चा दो चीजों के लिए यूज होता है, या तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड या ऑफिस ओरिएंटेड। अगर आप एक नॉर्मल सा क्या बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस करते हो तो उसमें तो आपको प्रोडक्शन नहीं लगता होगा, उसमें जो भी खर्चे होते होंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते होंगे ज्यादातर। और जो परचेज के टाइम आप खरीद के लाते हो वो छोटे मोटे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। पर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको हम अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज स्केल लेके चले, लार्ज स्केल मान के चले। तो टेक एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फैक्ट्री भी होती है, ऑफिस भी होता है, प्रोडक्शन वर्क भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। तो जो एक बड़ा स्केल बिजनेस है, टेक एग्जांपल ऑफ ए लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन where you find factory related work also and office related work also. ठीक है, where you work as a production or the expenses that are made in the line of production are called as direct expenses, and the expenses that are made for maintaining the office or for administrative purpose that are called as indirect expenses. So these are factory expenses, these are office expenses, these are expenses made for production, these are expenses not made for production but made for administrative purpose. So clear? We have also seen the examples of direct expenses. What are the direct expenses? Production related expenses like purchase, carriages inward, wages, coal, fuel, lighting, heating, factory rent. Then indirect expenses. What are those indirect expenses? Somehow different from but somehow similar also to direct expenses. Similar in the sense rent of factory, direct expense, rent of office, indirect expense, wages to workers, direct expense, salary to employees, indirect expense. Okay, then other expenses are also there like carriage inward made for purchases, direct expense, carriage outward made for sales, indirect expense, and other also we have seen like depreciation, bad debt, interest on loan, bank charges. These are also comes under indirect expenses. Now, as we have studied about the functions of accounting, अब ये तो समझ में आ गया, इसमें कुछ भी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हमने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में देखा था कि हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने तरह के हैं ये मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये खर्चे और जो एक्सपेंसेस हमने पढ़े हैं उनको हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है,
So let us discuss about financial statements. फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बताया था. व्हाट डज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन एंड व्हाई सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म. स्टेटमेंट मतलब एनीथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज बैंक स्टेटमेंट? व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज समराइज स्टेटमेंट? व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अदर स्टेटमेंट्स? व्हाटएवर यू नेम गिव, Why it is called as financial statements? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ आपके बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं. बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं. आप अच्छे तरह से समझते होंगे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. रिकॉर्डिंग क्या करता है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को तुरंत लिख देता है. एज सुन एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, वी मस्ट रिकॉर्ड इट इन जर्नल. तो रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल में, अब उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग. फिर आता है आपका इंडिविजुअल अकाउंट का डिटेल इंफॉर्मेशन जो आप करते हो क्लासिफाइंग में. तो क्लासिफाइंग इज डन इन द बुक ऑफ लेडजर वेयर द ईच अकाउंट्स इंडिविजुअल डिटेल इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. नाउ थर्ड इज समराइजिंग. अंडर समराइजिंग व्हाट टू डू? The classified data are summarized in such a way that it can be helpful in future for interpretation purpose. What is that interpretation purpose? That is to judge or to analyze the business information in such a way that we can determine we are having profit or loss in the business. So the last function of accounting that we have discussed in our videos was interpretation. So what does the interpretation speaks about? That recorded, classified and summarized data are interpreted, analyzed, prepared and written and presented in such a way that it is very helpful or understandable for every businessman or every business enterprise to determine, to calculate the or to ascertain the profit or loss of a business. That business can be your trading or manufacturing business. So interpretation में हमने देखा था कि हम interpretation प्रोसेस को कहां पे करते हैं? फाइनल अकाउंट में. और फाइनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. उस स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो लेट आई राइट हियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको क्यों बोला गया? क्योंकि बिजनेस के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको बोला था, जो भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हैं जिसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम बिल्कुल भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे. इसलिए हम बिजनेस में जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होता है. इसलिए यहां पर भी हम जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपका समराइज डाटा है वो भी दैट हैव सम मॉनेटरी वैल्यू, वो भी कुछ पैसे या मॉनेटरी वैल्यूज इन्वॉल्व करता है. इसलिए उसको नाम दिया गया फाइनेंशियल